Hello student, this is Shilpa Yadav, Assistant Professor Chemistry from Government Mahamaya College, रतनपुर। आज हमने जो टॉपिक लिया हुआ है वह MSc सेमेस्टर सेकेंड पेपर सेकेंड यूनिट 4 दैट इज मैकेनिज्म ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग इनोलेट्स। Today's topic is aldol condensation. There are some points which we will discuss. First is what is aldol condensation and the next mechanism of aldol condensation. Aldol condensation. Aldol condensation is a reaction in which enol or enolate ion react with carbonyl compound to form beta hydroxyaldehyde or a beta hydroxy ketone. In this reaction, carbonyl compound must contain alpha hydrogen atom. And now the question arises, when enol is formed and when enolate ion is formed. When we take acid as a catalyst, enol is formed. When we take base as a catalyst, enolate ion is formed. Here we take base as a catalyst, means in this reaction enolate ion is formed. This is aldehyde. This aldehyde in the presence of base form beta hydroxyaldehyde or beta hydroxybutyraldehyde, or say that 3-hydroxybutanol. This is alpha, this is beta position. Aldol, ald for aldehyde, ol for alcohol, aldol. Now in the next step, this is dehydration. Elimination of water molecules take place from alpha and beta position. This is alpha beta unsaturated aldehyde. यदि हम अल्डिहाइड की जगह कीटोन लेते उस केस में क्या बनता है, यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन फॉर्म होता एंड हियर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन फॉर्म होता। मतलब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या फॉर्म होता, कीटोन। यदि हम लेते टू डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड, इफ वी टेक टू डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड आइदर एल्डिहाइड और कीटोन और वन एल्डिहाइड वन कीटोन मीन्स डिफरेंट कंपाउंड लेते, उस केस में क्या फॉर्म होता, उस जो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। उस कंडेंसेशन को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। यदि दो कार्बोनिल कंपाउंड सेम होगा दैट इज सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन। व्हेन टू डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड यूज दैट इज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन. Now the mechanism of reaction. Reaction is carried out in 3 steps. First, formation of enolate. Second, addition of nucleophile on carbonyl compound. And third, elimination of water molecules. That means dehydration. We start with the formation of enolates. We take, this is base, dilute base, Na plus OH ion में split हुआ. Now this is aldehyde having alpha hydrogen atom or active hydrogen atom. This is act as a acidic in nature. ठीक है, ये acidic nature का है due to presence of this electron withdrawing group. ये electron withdrawing group है, ये इस hydrogen atom को acidic बनाता है. ठीक है, and this hydroxyl group grab this hydrogen atom and form H2O. नाउ यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन का वो शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स दिस कार्बन एटम एंड फॉर्म कार्ब एनायन, और दिस कार्बन आयन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल और इसको हम बोलते हैं इनोलेट आयन. दिस इज इनोलेट आयन. दिस इज द टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ इनोलेट आयन. द स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, एंड स्ट्रक्चर 2 इज अ स्टेबल स्ट्रक्चर. Now second, that is addition of nucleophile on carbonyl carbon. This is nucleophile or enolate ion. This is carbonyl compound. This is oxygen atom. This oxygen atom is more electronegative than this carbon atom. It attracts shared pair of electron towards itself and carry negative charge. And this oxygen atom carry positive charge, means this carbon atom act as a electrophile.
means this is electron deficient carbon atom. Now this nucleophile electron rich, ये कहाँ अटैक करेगा? टूवर्ड्स दिस कार्बन एटम, मीन्स कहाँ पर अटैक करेगा? ये कार्बन एटम पे जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये फॉर्म करेगा ये इंटरमीडिएट कंपाउंड. दिस इज CH3, CHO नेगेटिव, CH2 एंड CHO. नाउ थर्ड, हाइड्रोलिसिस एंड डिहाइड्रेशन. फर्स्ट हाइड्रोलिसिस, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड हमने लिया. नाउ दिस हाइड्रोलिसिस में HOH आयन हुआ. H प्लस आयन कहाँ जुड़ेगा? दिस हाइड्रोजन एटम पे एंड फॉर्म करेगा OH. दिस इज CH3, CHOH, CH2 एंड CHO. दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और अल्डोल. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, that is dehydration. This is beta hydroxy aldehyde. यहाँ पर क्या होगा? ये हाइड्रोजन एटम और ये OH दोनों क्या करेगा? एज अ वाटर मॉलिक्यूल्स लिबरेट होगा. ये देखिए बाय हीटिंग ये फॉर्म किया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड. दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड. ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है. यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन उठ सकता है कि यहाँ पर ये अल्फा हाइड्रोजन एटम हमने लिया है. ये ऐसा भी हो सकता था पॉसिबिलिटीज़ कि हम यहाँ से एक H लें और यहाँ से OH लें और यहाँ से फिर हम क्या बना लें? वाटर मॉलिक्यूल्स. बट यदि हम यहाँ से H लेते और ये OH के साथ यदि वाटर मॉलिक्यूल्स बनाते तो यहाँ पर डबल फॉर्म बॉन्ड्स जनरेट हो जाता और ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन दिस स्ट्रक्चर इज, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होता एज़ कम्पेयर टू दिस स्ट्रक्चर. यहाँ पर क्या हो रहा है? ये स्ट्रक्चर क्या हो जा रहा है? ज़्यादा स्टेबल हो रहा है जब हम यहाँ से H प्लस आयन ले रहे हैं ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन. क्लियर है? तो यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड. देखिए ये रिएक्शन में हमने 3 स्टेप लिया. फर्स्ट स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट. सेकेंड स्टेप था एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू ऑन कार्बोनिल कंपाउंड. थर्ड स्टेप था एलिमिनेशन ऑफ वाटर एंड डिहाइड्रेशन. यहाँ हमारा पूरा मैकेनिज्म होता है. अब देखिए ये जो रिएक्शन जो होता है एल्डोल कंडेंसेशन, इसका मेन यूज़ होता है इन द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसिस करने में? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें CC बॉन्ड फॉर्मेशन हो, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसिस करने में एल्डोल कंडेंसेशन का यूज़ होता है. आज का ये हमारा टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है, एल्डोल कंडेंसेशन. थैंक यू.